So we'll start with the last few topics of this chapter. Actually, ये already हमने किया है. In a way, we have solved numericals on this. अगर आपको याद होगा तो कल के सेशन में in the last lecture we have solved examples on Carnot refrigerator. क्योंकि any refrigerator has the same equation of coefficient of performance and any heat engine also has same equation of, if you remember, efficiency. अगर कोई भी इंजन हो, एनी इंजन विल हैव द सेम एफिशिएंसी के इक्वल टू, याद होगा, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, या फिर इट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या फिर इट इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. सिमिलरली एनी रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर आपको पता होना चाहिए, इट इज नथिंग बट अ हीट इंजन व्हिच इज ऑपरेटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. So for any refrigerator, coefficient of performance is always given by, you remember Q2. Q2 मतलब QC, heat extracted from colder region, upon Q1 minus Q2. Q1 is heat rejected to the hotter region minus Q2 is heat extracted from the hotter region. तो आपको याद होना चाहिए, कोई भी इंजन हो, हीट इंजन हो, उसका एफिशिएंसी सेम होता है, राइट? चाहे वो कार्नोट इंजन हो या फिर कोई और गैसोलीन इंजन हो, फॉर्मूला इज द सेम. सिमिलरली एनी रेफ्रिजरेटर हैज द सेम इक्वेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. एंड एज वी नो, व्हाट डू वी नो, हमको ऑलरेडी पता है, अगर हम सिर्फ हीट इंजन साइकिल का ऑर्डर रिवर्स सर्वे बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दे तो क्या मिलता है हमको? रेफ्रिजरेटर. क्योंकि heat engine extracts heat from hotter region, does work and rejects the remaining heat to the sink, मतलब colder region. यहाँ पे उल्टा है, heat is extracted from colder region, work is done on the gas and work done plus heat extracted is rejected to the hotter region. तो अगर इतना पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्नोट इंजन को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज a Carnot refrigerator. So a Carnot engine operated in a reverse order is nothing but a Carnot refrigerator. So before we go ahead with Carnot refrigerator, we will see which were the different strokes involved in a Carnot engine. So Carnot engine में कौन-कौन से strokes है देखेंगे हम लोग. If you remember, if you plot PV diagram here, pressure volume diagram अगर आप plot करते हो, तो इनिशियल स्टेट था ए. सबसे पहला स्ट्रोक अगर आपको याद होगा, इट वाज आइसोथर्मल एक्सपांशन. तो ए टू बी इट वाज आइसोथर्मल एक्सपांशन, करेक्ट. देन इफ यू रिमेंबर, यहाँ था V1, P1 और T1, और यहाँ था V2, P2, T1. क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, इसके लिए आइसोथर्मल एक्सपांशन. So the flow was from A to B. Then जो सेकेंड स्ट्रोक था आइसोथर्मल एक्सपांशन के बाद था एडियाबैटिक एक्सपांशन. तो इसके बाद था एडियाबैटिक एक्सपांशन. एडियाबैटिक एक्सपांशन में, इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन, फ्रॉम B to C इज एडियाबैटिक एक्सपांशन. और इस केस में वॉल्यूम विल बी V3, प्रेशर विल बिकम P3 एंड टेम्परेचर विल बिकम T2. तो यहाँ पे एडियाबैटिक होने की वजह से heat is not allowed to enter or leave the system. So that is why, और expansion है तो work is done by the gas. अगर work done by the gas है तो temperature कम होगा, तो temperature कम हो गया तो T1 is higher temperature, T2 is lower temperature. इसके बाद का जो stroke था वो अगर आपको याद होगा, it was isothermal compression. इसके बाद था isothermal compression from C to D. और ये जो D पॉइंट है, D स्टेट है, यहाँ पे वॉल्यूम था V4, प्रेशर था P4, टेम्परेचर था T2. क्योंकि आइसोथर्मल है तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ दिस साइकिल वाज एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो लास्ट जो था दैट वाज एडियाबैटिक कंप्रेशन. ओके, जस्ट अ मिनट. So you have adiabatic compression here, right? तो ये था आपका एक कार्नोट इंजन का वर्किंग. Now what we know is
जैसे मैंने अभी आज स्टार्ट में ही बताया आपको, एनी हीट इंजन operated in backward direction becomes a refrigerator. So similarly, a Carnot heat engine operated in opposite direction, मतलब in backward direction becomes a Carnot refrigerator. So a Carnot engine operated in backward direction, in backward या फिर in reverse direction बोल सकते हो, in reverse direction is known as Carnot refrigerator. Is known as Carnot refrigerator. अब what else we know, इससे ज्यादा और हमको क्या पता है? What do you know in this case is, इसमें जो हर एक प्रोसेस है, जैसे पहला प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर था एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर था आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन इट वाज एडियाबैटिक कंप्रेशन. ईच प्रोसेस इन अ कार्नोट साइकिल, क्योंकि एक साइकिल है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम होता है, तो इट बिकम्स अ साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है, दैट इज व्हाई इट इज अ साइकिल. हमको पता है ईच प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल. इसका मतलब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ यहाँ पे एरो हेड का डायरेक्शन चेंज करना है. तो बिकॉज ईच प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इसका मतलब आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. मतलब यू कैन शो A to D and then B to C and then C to B and last stroke will be B to A. करेक्ट? क्योंकि हमने अभी भी बोला ना, हमने क्या बोला, कार्नोट इंजन को आप अगर रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करते हो तो क्या बन जाता है, रेफ्रिजरेटर. तो कार्नोट इंजन क्या कर रहा था, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा था, पार्ट ऑफ हीट वाज कन्वर्टेड टू वर्क रिमेनिंग वाज रिजेक्टेड. तो उसका पीवी डायग्राम क्या था, A to B आइसोथर्मल एक्सपांशन, देन एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन. इसका उल्टा कर दिया. उल्टा करें तो पहला स्ट्रोक क्या आएगा, ये एक्सपांशन है ना, राइट, दिस इज एक्सपांशन, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. एडियाबैटिक एक्सपांशन है, फिर आइसोथर्मल एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड देन, राइट. तो ईच प्रोसेस in a Carnot cycle is reversible, and hence the whole cycle itself is reversible, and hence the whole cycle is reversible. यहाँ तक क्लियर, राइट. एंड ये जो रिवर्स साइकिल मिला, इसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल. सो दिस रिवर्स साइकिल is known as refrigeration cycle. राइट. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी आपको थ्योरी नोट्स में ऑलरेडी दिया है. इट्स सो सिंपल, देयर इज नथिंग टू डिस्कस. हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व भी किया है. तो रिमेंबर, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर है तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी की तो बात कर नहीं सकते. एफिशिएंसी हीट इंजन के केस में होता है. ये क्या है, रेफ्रिजरेटर. तो कौन सा पैरामीटर आप लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज गिवन बाय coefficient of performance of Carnot refrigerator is given by K equal to QC upon work done. और अगर आपको याद होगा तो वर्क डन था QH माइनस QC. यहाँ तक क्लियर. हर एक रेफ्रिजरेटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सेम है, चाहे वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो जनरल रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, इट इज द सेम. अब एक काम करेंगे, लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय QH. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
ये हम सिर्फ क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस के अलग अलग फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, नथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। नहीं भी लिखोगे तो आई विल जस्ट स्किप दैट स्टेप बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, therefore coefficient of performance is equal to TC upon TH minus TC। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2? जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा किसमें, कोल्डर रीजन और हॉटर रीजन में, उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। तो लेसर इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्डर रीजन मतलब इनसाइड द चेंबर एंड हॉटर रीजन मतलब आउटसाइड द चेंबर इज लेस, मोर इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये भी होता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो सेम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वर्क डन भी कम होगा। और रेफ्रिजरेटर में वर्क इज डन ऑन द गैस होता है कि बाय द गैस होता है? ऑन द गैस। So from equation number 2, we see that from equation number 2, we see that coefficient of performance, coefficient of performance of Carnot refrigerator, Carnot refrigerator is inversely related to difference in the temperature, difference in the temperature between hotter region and colder region, temperature between colder and hotter region, and hence therefore what you can say, therefore less is the temperature difference, more is the coefficient of performance. Less is the temperature difference, more will be क्या होगा, more will be its performance, मतलब coefficient of performance। coefficient of performance क्या बताता है हमको, परफॉर्मेंस ही बताता है, that is why। then इसका मतलब ये भी होता है कि less amount of work is done to produce cooling, therefore less work is done to produce cooling, और लेस वर्क डन अगर हुआ इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, इन शॉर्ट, राइट, गुड। तो याद रखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है राइट एन ऑटो कार्नोट रेफ्रिजरेटर, तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी हीट इंजन पता है, हमको ऑलरेडी कार्नोट इंजन पता है, हमको ये भी पता है कि अगर आप हीट इंजन को रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेट करते हो तो क्या मिलता है आपको, रेफ्रिजरेटर मिलता है। तो चाहे वो जनरल रेफ्रिजरेटर हो या फिर कार्नोट रेफ्रिजरेटर हो, सिर्फ डिफरेंस ये है, ओनली डिफरेंस इज कार्नोट इंजन में या फिर कार्नोट रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस, और हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस इज फ्यूल वेपर प्लस एयर। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, एंड देन यू नीड टू नो कि कार्नोट इंजन में कौन से 4 स्ट्रोक्स है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो सिर्फ डायरेक्शन उल्टे कर दो। और ऐसा क्यों कर पाए हम लोग, वी कैन डू दिस बिकॉज when you talk about refrigerator, it is reverse of jet engine, तो Carnot engine operated in backward or reverse direction is known as Carnot refrigerator। और इसमें हर एक प्रोसेस जो था, each process A to B, B to C, C to D, D to A, these are all processes which can be reversed, so each process in Carnot cycle is reversible। अगर हर एक प्रोसेस रिवर्सिबल है तो पूरा का पूरा साइकिल भी रिवर्सिबल है। मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए जाने की जगह पे यू कैन गो फ्रॉम ए टू डी, डी टू सी टू बी एंड देन डी टू ए, राइट। हेंस द होल साइकिल इज रिवर्सिबल। ये जो रिवर्स साइकिल हमको मिला है इसको बोलते हो रेफ्रिजरेशन साइकिल। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस, चाहे वो कोई भी हीट इंजन हो, चाहे वो कोई भी रेफ्रिजरेटर हो, एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा सेम ही रहता है।
फॉर्मूला इज द सेम। अगर हीट इंजन होगा तो इफिशिएंसी विल बी वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। अगर वो रेफ्रिजरेटर है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्डर रीजन QC अपॉन वर्क डन टू एक्सट्रैक्ट हीट, और वर्क डन का QH माइनस QC, but Q is proportional to T, therefore K is TC upon TH minus TC। तो ये इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या समझ में आता है, अगर आपको परफॉर्मेंस फैक्टर बढ़ाना है, परफॉर्मेंस फैक्टर बढ़ाने का सिंपल सा मतलब ये होता है, कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए कम वर्क होना चाहिए, लेस वर्क शुड बी डन टू प्रोड्यूस सेम कूलिंग इफेक्ट, राइट, करेक्ट। तो कम से कम वर्क में ज्यादा से ज्यादा कूलिंग चाहिए आपको, दैट इज व्हाट यू मीन बाय परफॉर्मेंस फैक्टर। जितना ज्यादा परफॉर्मेंस फैक्टर होगा उतना ही कम वर्क डन होगा टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑफ कूलिंग। एंड यू सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको आप क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हो, इसको आप क्यू वैल्यू भी बोलते हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन हॉट रीजन एंड कोल्ड रीजन। मतलब जितना हॉट एंड कोल्ड रीजन में डिफरेंस कम होगा उतना ही कम वर्क डन होगा टू प्रोड्यूस कूलिंग, राइट। Good. So from equation 2, we see that coefficient of performance of Carnot refrigerator is inversely related to difference in the temperature between colder and hotter region. Thus, less is the temperature difference, more will be its performance. यहाँ तक clear? So this is the most simple. आखिरी के जो 2-3 टॉपिक है, actually I was thinking to skip, क्योंकि maybe I thought कि आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा. There's nothing much here. तो एनीवेज अगला टॉपिक भी सिंपल है। अगला टॉपिक इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द कार्नोट साइकिल। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कार्नोट साइकिल का रिलेशन क्या है। इट इज अगेन जस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द कार्नोट साइकिल। वेल इट इज हाईली अनलाइकली कि आपको इस पे कोई क्वेश्चन आएगा भी, क्योंकि इट इज जस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई पूछेगा नहीं राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कार्नोट साइकिल। ये क्यों होता है? इट इज जस्ट टू मेक श्योर कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है। तो पहले तो मुझे बताओ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। उसमें 2 स्टेटमेंट थे, एक था फर्स्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हो इंजन स्टेटमेंट, इंजन लॉ या फिर केल्विन क्लाइन स्टेटमेंट, और दूसरा था सेकेंड फॉर्म जिसको आप बोलते हो रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट, रेफ्रिजरेटर लॉ या फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो व्हाट वाज इंजन स्टेटमेंट? व्हाट वाज इंजन स्टेटमेंट? engine statement, the heat extracted from a hotter region QH can never be converted completely to work. Some amount of heat QC is always rejected to sink. Sink मतलब colder region. ये था पहला फॉर्म, राइट। दूसरा, heat on its own cannot flow from a region of lower temperature to a region of higher temperature. Some amount of work is always needed to extract heat from colder region and reject it to hotter region. ये था second statement. Then इसके बाद right after this, if you remember, second law of thermodynamics के बाद हमने immediately after that we have seen what is a Carnot engine, right? एक तो पहले हम बोल रहे हैं second law of thermodynamics में कि heat can never be completely converted to work, करेक्ट। और कार्नोट में हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये आइडियल गैस इंजन है, इट कन्वर्ट्स ऑल द हीट टू वर्क। So what do you understand by this? According to second law of thermodynamics, you can never convert heat completely to work, but according to Carnot's engine is the most efficient engine. Most efficient engine का मतलब क्या होता है कि उसका efficiency maximum है, right? So you should know, क्या पता होना चाहिए आपको, Carnot engine is the most efficient engine from
from all compared to all the other engines. Compared to all the other engines. क्यों इसका रीजन है? इसका रीजन ये है कि पहली बात तो ये थियोरेटिकल इंजन है, दूसरा ये आइडल गैस यूज करता है वर्किंग सब्सटेंस, राइट? करेक्ट, तो ये पता होना चाहिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से यू कैन नेवर कन्वर्ट हीट कंप्लीटली टू वर्क, बट अकॉर्डिंग टू कार्नोट इंजन यू कैन कंप्लीटली कन्वर्ट हीट टू वर्क। कंप्लीटली नहीं भी किया तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। नंबर टू कार्नोट इंजन से आपको और एक चीज समझ में आई, कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी क्या था। मुझे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? टीसी अपॉन टीसी, नो, इट वाज टीएच माइनस टीसी अपॉन टीएच, टीएच माइनस टीसी अपॉन टीएच, या फिर 1 माइनस टीसी बाय टीएच, करेक्ट? तो कार्नोट इंजन का इफिशियंसी है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। इससे क्या समझ में आता है हमको? इससे हमको ये समझ में आता है efficiency for all the Carnot engine is same irrespective of the working substance. Working substance आप कोई भी यूज कर लो, you may use nitrogen, you may use hydrogen, you may use helium, you may use some other gas, you may use oxygen also. तो आप वर्किंग सब्सटेंस कोई भी यूज करो, efficiency will be the same, right? लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है। efficiency also depends on type of working substance, right? So now from here what you can write is the efficiency of all the heat engines, कौन से? Carnot engine, of all the Carnot engines is the same provided they are working in the same temperature range, provided they are working in the same temperature range। मतलब अगर सिंक का और सोर्स का टेम्परेचर सेम है, मेरे पास 4 इंजन है, 5 इंजन है, और चारों पांचों केसेस में सोर्स टेम्परेचर लेट अस से is 1000 Kelvin and sink temperature let us say is 500 Kelvin. So irrespective of working substance, the efficiency will be the same, correct? तो यहाँ पे जब वो लिखते हैं ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द कार्नोट साइकिल, तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कंपेयर कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो बोलता है कार्नोट उसका उल्टा करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेफिनेटली efficiency will depend on the type of working substance। तो क्या हमको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए? एक तो वन इज इट इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, दूसरा इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, आप कोई भी वर्किंग सब्सटेंस यूज कर लो, अगर सोर्स का और सिंक का टेम्परेचर सेम है तो इफिशियंसी हमेशा सेम रहेगा, राइट? तो बाकी डिटेल्स आई विल नॉट राइट डाउन हियर, वो मैंने आपको नोट्स में दिया ही है। Carnot engine is the most efficient heat engine, point number 1. Efficiency of Carnot engine is independent of its working substance, point number 2. Now that's clear, right? So so far what have we seen? एक तो Carnot refrigerator क्या है, and then what is the difference between second law of thermodynamics and the Carnot cycle? The last topic of this chapter इसको हम बोलते हैं Stirling cycle। अब जहां जहां पे ये वर्ड सुनोगे साइकिल, कहाँ कहाँ सुना है साइकिल वर्ड आपने? तो स्टार्ट ऑफ विद साइक्लिक प्रोसेस से ये स्टार्ट हुआ था। साइक्लिक प्रोसेस को हमने डिफाइन किया था। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? द वर्किंग सब्सटेंस गोज बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, अ प्रोसेस व्हिच टेक्स बैक वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स इनिशियल स्टेट, व्हिच मींस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, व्हिच मींस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, राइट? यहाँ पे याद रखना, जब जब साइक्लिक प्रोसेस या फिर साइकिल ये वर्ड आए तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? फिर डिफरेंस होता है प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जब हम जनरल हीट इंजन डिस्कस कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर जनरल हीट इंजन,
याद होगा जनरल हीट इंजन, याद है? जनरल हीट इंजन में जो पहला स्ट्रोक था, फर्स्ट प्रोसेस था, वो था आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन। तो the system goes from initial state A to final state B at constant volume। मतलब पिस्टन का मोशन नहीं हुआ, सिर्फ हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ। कहाँ से? सोर्स से, राइट? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो नो वर्क डन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीट वाज एब्जॉर्ब, तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट एब्जॉर्प्शन मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, तो ए टू बी प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ये पहला स्ट्रोक था हीट एब्जॉर्प्शन का, आइसोकोरिक। इसके बाद जो सेकंड था वो था आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के केस में, वॉल्यूम वाज इंक्रीजिंग, प्रेशर वाज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। तो जो तीन स्टेप्स थे, हीट एब्जॉर्प्शन, वर्क डन एंड हीट रिजेक्शन, राइट? तो पहले ए टू बी हुआ हीट एब्जॉर्प्शन, बी टू सी हुआ वर्क डन बाय द गैस, राइट? एंड सी टू डी, सॉरी, ए बी सी एंड डी, यस, सी टू डी व्हाट यू हैव इज हीट रिजेक्शन, करेक्ट? और हीट रिजेक्शन कैसे होता है? हम क्या करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस को स्टिंग के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, विदाउट प्रेसिंग द पिस्टन डाउन, विदाउट कंप्रेशन। हमने सिर्फ वर्किंग सब्सटेंस को स्टिंग के साथ कांटेक्ट में लाया। स्टिंग इज एट लोअर टेम्परेचर एंड वर्किंग सब्सटेंस इज एट हायर टेम्परेचर, तो हीट ऑन इट्स ओन विदाउट द मोशन ऑफ पिस्टन विल गो फ्रॉम वर्किंग सब्सटेंस टू द स्टिंग। So that is why this is isochoric, मतलब no work is done in this case। तो यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हुआ। और लास्ट स्ट्रोक जो था, लास्ट स्ट्रोक कौन सा था उस केस में? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये था लास्ट स्ट्रोक, इफ यू रिमेम्बर, ये था आइसोथर्मल कंप्रेशन का स्ट्रोक। यहाँ तक क्लियर? अब ये एक साइकिल है। सिमिलरली हमने और भी साइकिल देखे हैं, कार्नोट साइकिल। कार्नोट कार्नोट साइकिल और ये जो साइकिल है, दोनों काम एक ही करते हैं। क्या काम करते हैं? हीट एब्जॉर्प्शन, वर्क डन, एंड देन हीट रिजेक्शन, एंड देन इट टेक्स द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो कार्नोट के केस में डिफरेंस क्या था? कार्नोट के केस में जो पहला पार्ट था वो था आइसोथर्मल। आइसोथर्मल था ना, आइसोथर्मल एक्सपांशन, याद है क्या? याद है? मतलब यहाँ पे कार्नोट साइकिल के केस में दो काम एक साथ हो रहे हैं, हीट एब्जॉर्प्शन का एंड वर्क डन का। यहाँ पे सिर्फ हीट एब्जॉर्प्शन हुआ था, ए टू बी, बी टू सी हुआ था वर्क डन। यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब पिस्टन इज मूविंग अप। इसका मतलब गैस, वर्किंग सब्सटेंस इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सोर्स एंड साइमल्टेनियसली पुशिंग द पिस्टन अप। तो ये वर्क डन और हीट एब्जॉर्प्शन का स्ट्रोक है, राइट? देन उसके बाद था एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब एडियाबैटिक एक्सपांशन भी वर्क डन का स्ट्रोक है, लेकिन इस केस में हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो A to B does two things, heat absorption plus work done, but B to C does only one thing, that is work done by the gas। और इसके बाद था वर्क डन ऑन द गैस, आइसोथर्मल वर्क डन। आइसोथर्मल है ना ये, इसमें आइसोथर्मल। एंड लास्टली आपके पास था एडियाबैटिक, राइट? तो कोई भी साइकिल हो है तो वो साइक्लिक, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा स्टर्लिंग साइकिल, तो स्टर्लिंग साइकिल मतलब ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस ही है, दिस इज अ थर्मोडायनामिक साइकिल, राइट? तो एक चीज हमेशा याद रखो, थर्मोडायनामिक्स में जब भी साइकिल ये वर्ड सुनोगे, कोई भी टॉपिक हो, दिस इज फॉर श्योर, दिस इज अ थर्मोडायनामिक साइकिल, थर्मोडायनामिक साइकिल। और जहां जहां पे थर्मोडायनामिक साइकिल हो, वो या तो हीट इंजन होता है या फिर वो रेफ्रिजरेटर होता है, दिस इज फॉर श्योर। अगर हीट इंजन है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा हॉटर रीजन से, वर्क डन करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा कोल्डर रीजन को। अगर रेफ्रिजरेटर है तो हीट एब्जॉर्प्शन होगा कोल्डर रीजन से, वर्क डन ऑन द गैस होगा एंड हीट रिजेक्शन होगा हॉटर रीजन को, करेक्ट? तो thermodynamic cycle is this Stirling cycle is
thermodynamic cycle. So it can do both, right? क्या क्या कर सकता है? It can do work. अभी देखो ऐसा है, थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेन करो. This cycle can also be heat cycle. Heat engine मतलब this cycle can also work like a heat engine. Work like a heat engine. Heat engine. If क्या कंडीशन था? Heat engine work is done by the gas. So this cycle can also work like a heat engine if work is done by the gas. If work is done by the gas. And it can also work like a refrigerator. Like a refrigerator if work is done on the gas. Like a refrigerator if work is done on the gas. यहाँ तक क्लियर? तो फिर डिफरेंस क्या है नॉर्मल हीट इंजन साइकिल और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं. तो देयर आर टू डिफरेंसेस टू बी वेरी स्पेसिफिक. एक इसका एप्लीकेशन और दूसरा इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हो दैट वर्किंग सब्सटेंस इज नॉर्मली या तो एयर होगा या तो हीलियम होगा या हाइड्रोजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा. तो वर्किंग सब्सटेंस इन दिस केस कैन बी एनी ऑफ दिस फोर. मैंने जब एयर बोला तो ये वेरी क्लियर था. एयर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ही होता है तो पता होना चाहिए वो. तो द वर्किंग सब्सटेंस इन स्टर्लिंग इंजन the working substance in Stirling engine is air or helium or hydrogen or nitrogen. क्योंकि डीजल और पेट्रोल इंजन में और स्टर्लिंग इंजन में यही डिफरेंस है. डीजल या पेट्रोल इंजन में फ्यूल वेपर प्लस एयर. यहाँ पे देयर इज नो फ्यूल, इट इज ओनली गैस, राइट. तो है ये भी हीट इंजन है लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने जो वर्किंग सब्सटेंस है वो प्योरली इन द फॉर्म ऑफ गैस लिया, दैट टू मोस्टली डायटोमिक गैस. क्योंकि हीलियम को छोड़ दोगे, हीलियम इज मोनोएटॉमिक क्योंकि वो इनर्ट है. हाइड्रोजन इज rigid diatomic, nitrogen is rigid diatomic, air in general is rigid diatomic. तो मोस्टली यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है इज नथिंग बट रिजिड डायटोमिक गैस. क्लियर? दूसरा इसका एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ यू नो एक प्रोसेस है जिसमें हम एयर को लिक्विफाई करते हैं. एयर का लिक्विफिकेशन क्या बोलते हैं उसको? पता है, सुना होना चाहिए केमिस्ट्री में. नो 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 नो. हाँ, कंडेंसेशन नहीं. कंडेंसेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस. यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हीट इंजन या फिर इसी को एज अ रेफ्रिजरेटर यूज करोगे तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? कोल्ड रीजन और कोल्ड होता है. सपोज ये मेरे पास एक रूम है जिसमें एयर है, मैं इसका टेम्परेचर कम 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 करते जाऊंगा तो एयर एट वन स्टेज विल बिकम लिक्विड. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? लिक्विफाइंग एयर थ्रू रेफ्रिजरेशन. नहीं पता? नहीं पता तो चेक करो. यू हैव टू चेक. इट स्टार्ट्स विद सी, समथिंग समथिंग एंड जेनिक्स. मैं हिंट दूंगा, आपको खुद को चेक करना है. नो, तो चेक करो, चेक करो बिकॉज बुक नोट्स में दिया है मैंने वो. आई हैव गिवन इट इन नोट्स. So this is a small assignment because at least you will start reading something. Okay. Cryogenics. Yes. So this Stirling engine is specifically used for the purpose of cryogenics in which air is artificially cooled down to become liquid. So this engine is specifically, and actually engine को हम reverse order में operate कर रहे हैं तो refrigerator. So this refrigerator is specifically used for
cryogenics in which air is artificially cooled, in which air is artificially cooled, और क्या करते हैं इसका and converted into liquid, मतलब लिक्विफिकेशन प्रोसेस है इसका, and converted into liquid. तो स्टर्लिंग रेफ्रिजरेटर का बेसिक पर्पस ये है, क्लियर? देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो साइकिल है इसके जो प्रोसेसेस है, कितने प्रोसेस है यहाँ पे? 4, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ 4 thermodynamic processes, 4 thermodynamic processes. और यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। हीट इंजन में पहला प्रोसेस था हीट एब्जॉर्प्शन, ओनली हीट एब्जॉर्प्शन, दैट्स इट, नो वर्क इज डन। दूसरे स्ट्रोक में वर्क इज डन, राइट? आइसोथर्मल एक्सपांशन था, इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस था। तीसरे स्ट्रोक में हीट रिजेक्शन था, चौथे स्ट्रोक में वर्क डन ऑन द गैस था। अगर आप इसको अच्छे से चेक करोगे तो यहाँ जो स्ट्रोक्स है, जो प्रोसेस है, वो चेंज हो जाते हैं। ये हो गया आपका यहाँ से ए, इनिशियल स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट इज दिस वन ए, उसके बाद हो जाएगा बी पे, उसके बाद हो जाएगा सी पे, एंड इट गोज बैक टू डी, एंड देन डी टू ए। तो जो पहला प्रोसेस है इट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। जो दूसरा प्रोसेस है इट इज आइसोकोरिक, दैट इज इन दिस केस रिजेक्शन ऑफ हीट, एंड देन यू हैव वर्क डन ऑन द गैस, एंड देन अगेन यू हैव आइसोकोरिक। तो इसमें 2 स्ट्रोक्स है, 2 अलग अलग टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। टू पार्ट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 पार्ट रिप्रेजेंट आइसोकोरिक प्रोसेस। So it consists of 4 thermodynamic processes. 2 of 4 are isothermal. कौन से 2 isothermal है यहाँ पे? AB and CD. AB and CD, and 2, and the remaining 2 are isocoric. कौन से 2 isocoric थे? B, C and D, E. तो अभी 3 साइकिल का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए आपको। हीट इंजन में A to B हीट एब्जॉर्प्शन without any work done, B to C isothermal expansion, work done but at constant temperature, heat rejection at constant volume, again you have isothermal compression, work done on the gas. उसके बाद जो कार्नोट इंजन था उसमें आइसोकोरिक था ही नहीं, उसमें था एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें वापस 4 प्रोसेस है, उसमें आउट ऑफ 4 में से 2 आउट ऑफ 4 यू हैव 2 विच आर आइसोथर्मल एंड 2 विच आर आइसोकोरिक। लेकिन जो पहला हीट इंजन था उसमें हीट एब्जॉर्प्शन था वेयर टू वेयर, ए टू बी, करेक्ट? ए टू बी आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे साइमल्टेनियसली A to B हीट एब्जॉर्प्शन भी होगा और वर्क भी होगा। तो A to B the system, मतलब वर्किंग सब्सटेंस which is nothing but helium, hydrogen, nitrogen और air, it is brought in contact with the source, hot reservoir। अगर इंजन बोल रहे हो तो, अगर रेफ्रिजरेशन बोल रहे हो तो उल्टा साइकिल है। तो इन दैट केस पहला जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपांशन, इन विच द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स एंड साइमल्टेनियसली पिस्टन इज मूविंग अप, मतलब साइमल्टेनियसली वर्क भी हो रहा है। सेकेंड स्ट्रोक में नो वर्क इज डन बिकॉज इट इज आइसोकोरिक। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, मतलब हीट का रिजेक्शन होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कम होना मतलब टेम्परेचर कम होना। मतलब सेकेंड प्रोसेस में डायरेक्टली आपने वर्किंग सब्सटेंस सिंक के साथ कांटेक्ट में लाया, जो हीट एब्जॉर्प्शन हुआ था ए से बी में उसका पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, जो कन्वर्ट नहीं हुआ, जो अमाउंट ऑफ हीट
वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, कार्नोट इंजन, पहला स्ट्रोक, working substance in contact with source, working substance, then you keep on insulating stand, then you go to sink, correct, then again go to insulating stand। यहाँ पे insulating stand missing है क्योंकि there is no process which is adiabatic। तो यही तो डिफरेंस है, that is what I am trying to tell you कि इसमें adiabatic नहीं है, मतलब इसमें सोर्स के बाद डायरेक्टली कौन है, सिंक है। तो जब आपने वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के साथ कांटेक्ट में लाया था, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, साइमल्टेनियसली वर्क हुआ, राइट। तो हीट एब्जॉर्ब इज बेसिकली डूइंग वर्क, करेक्ट। देन आपने उठा के रख दिया कहाँ पे, सिंक पे। अब सिंक का टेम्परेचर हमेशा वर्किंग सब्सटेंस से कम ही होता है, मतलब क्या होगा, हीट का रिजेक्शन होगा, करेक्ट। अब आप बोलोगे हीट रिजेक्ट होना ही क्यों चाहिए, लॉजिकल है ना। अल्टीमेटली आइडिया हियर इज, मैंने आपको ये बताया है, सपोज वर्किंग सब्सटेंस ने एक टेम्परेचर से स्टार्ट किया और आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब जितना हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना का उतना वर्क हो रहा है, करेक्ट, राइट। तो अगर 10 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो 10 जूल वर्क हुआ, सही है। तो हीट रिजेक्शन का पॉइंट कहाँ से आया फिर, क्यों होना चाहिए हीट रिजेक्शन, बिकॉज यू वांट टू गो बैक टू इनिशियल स्टेट, करेक्ट। ये आइसोथर्मल है, टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं था क्योंकि जितना हीट लिया उतना का उतना वर्क हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं, ऐसे भी एक्सपांशन है कि नहीं, प्रेशर कम हो गया, यस। तो वापस से उस स्टेट पे जाओगे कैसे। अब याद रखना, नॉर्मली वर्किंग सब्सटेंस हमेशा कम टेम्परेचर पे होता है कंपेयर टू सोर्स, और हमेशा ज्यादा टेम्परेचर पे होता है कंपेयर टू सिंक, मतलब टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज इन बिटवीन सोर्स एंड सिंक। पहले सोर्स पे रखा, हीट एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वर्क में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। देन आपने उसको लाया सिंक के साथ कांटेक्ट में, हायर टेम्परेचर किसका है, वर्किंग सब्सटेंस का, लोअर किसका है, तो ऑटोमेटिकली हीट विल फ्लो फ्रॉम सब्सटेंस टू सिंक। अगर हीट फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो प्रेशर भी कम होगा, प्रेशर कम हो गया, करेक्ट। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द साइकिल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट शुड बी सेम। ए टू बी में पिस्टन का मोशन अप हो गया था, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो वापस से हमको सेम वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा, तो एक कंप्रेशन का पार्ट होना ही चाहिए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्रेशन, जिसमें हम कर क्या रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो देखो डी और ए वॉल्यूम क्या है, सेम है, पीवीटी में से वी सेम हो गया, वॉल्यूम इनिशियल एंड वॉल्यूम फाइनल आर सेम, बट प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर नॉट सेम। वापस से उसको कहाँ लाओगे, वर्किंग सब्सटेंस के साथ, वर्किंग सब्सटेंस को कहाँ लाओगे, सोर्स के साथ कांटेक्ट में, करेक्ट। पर वॉल्यूम तो सेम हो गया, अब पिस्टन का मोशन होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ उठा के रख दिया कहाँ पे, सोर्स के ऊपर। हायर टेम्परेचर किसका है, सोर्स का, हीट कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यू आर बैक टू स्टेट ए, राइट। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, सी द थिंग इज, ये जो प्रोसेस है ना, समझना कैसा है, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वन सिंगल पॉइंट, साइकिल है ये, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, बराबर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। तो अगर आप ए स्टेट से स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सम स्टेट, राइट, वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्क डन नहीं होगा तो इंजन का मतलब ही नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव टू डू वर्क बिकॉज यू वांट आउटपुट वर्क। आपको कोई गाड़ी का इंजन चलाना होगा, आपको जनरेटर चलाने होंगे, तो वर्क डन तो होना चाहिए ना। वर्क डन होना मतलब पिस्टन का मोशन ऊपर होना, पिस्टन शुड मूव आउटवर्ड्स, पिस्टन आउटवर्ड मूव होना मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया, और वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर चेंज होता ही है, टेम्परेचर हो नहीं हो, करेक्ट। तो जो पहला प्रोसेस था ए टू बी, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है मतलब वर्किंग सब्सटेंस किसके साथ कांटेक्ट में होगा, सोर्स के साथ, जितना हीट लिया उतना का उतना वर्क हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो गए। अगर मुझे वापस से ए स्टेट पे जाना है तो मुझे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों की तीनों सेम चाहिए,
ज्यादा क्लियर। अगर फिर आप बोलोगे फिर हमने ऐसा क्यों किया, हीट रिजेक्शन क्यों किया, सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज हुआ था ना, सिर्फ टेम्परेचर सेम था, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हुआ। ए टू बी क्या चेंज है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। तो यू कुड हैव सेड, आप ऐसा ही बोल सकते थे ना कि वाई टू डू बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, वापस चले जाओ। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, आइडिया इज दिस। अभी थर्मोडायनेमिक्स है ही वैसा, समझ गया तो बढ़िया है, नहीं समझा तो फिर खिचड़ी बनते रहेगा दिमाग के अंदर। से लिसन, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार तो 10 बार, आई विल रिपीट, नो इशू विद दैट। अल्टीमेटली साइक्लिक प्रोसेस, हीट इंजिन्स परफॉर्म साइक्लिक प्रोसेस। अब हुआ ये, ए स्टेट से बी पे गया, कौन सा प्रोसेस था, आइसोथर्मल। मतलब क्या चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर, क्या चेंज हुआ, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हो गया, क्यों, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमारा लास्ट फाइनल एम क्या है, गैस को वापस से कहाँ लेके जाना है, ए से। तो अभी आपने बोला ना ए से बी आया, टेम्परेचर सेम था, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा मतलब पिस्टन गोस अप, वर्क डन हो गया, वापस से ए पे जाना है तो चले जाओ वापस। तो वाई टू परफॉर्म अदर पार्ट ऑफ द साइकिल, ये प्रैक्टिकल इंजन है, डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं यहाँ पे, ऑलवेज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, प्रैक्टिकल इंजन में देयर इज सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यू कैनॉट गो बैक टू सेम पाथ। याद है क्या ये, यू रिमेंबर रिवर्सिबल प्रोसेस, you cannot go back to same path, the process becomes irreversible। तो सेम पाथ से तो जा नहीं सकते, ये तो पक्का है, तो हमको पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो पाथ चेंज करना पड़ेगा तो बाकी स्ट्रोक्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले स्ट्रोक में वर्क डन बाय द गैस हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर रह गया सेम। अब अब हम क्या करते हैं, अब सोर्स से उठा के वर्किंग सब्सटेंस को रख देते हैं सिंक पे। Working substance is at higher temperature and sink is at lower temperature. So heat will be rejected to the sink, but at constant volume. अब इसके बाद हमको वॉल्यूम को वापस से सेम स्टेट पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन, क्योंकि पिस्टन ऊपर मूव हो गया था ना ए से बी, तो हमको उसको वापस से लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, सेम पोजीशन पे लेके जाना है। ऊपर मूव हुआ था तो नीचे मूव करोगे, तो कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे तो प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, करेक्ट। तो सी टू डी मेक्स श्योर, ये पक्का हो गया कि वॉल्यूम तो सेम स्टेट पे आ गया। अब कौन कौन सेम स्टेट पे नहीं आया, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब क्या क्या चेंज करना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड लकीली दोनों को इंक्रीज करना है, एक को इंक्रीज दूसरे को डिक्रीज करना होता तो गए काम से, 2 स्ट्रोक और बढ़ेंगे इसके अंदर, राइट। तो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूँ, सिर्फ मैं हीट सप्लाई कर देता हूँ, हीट सप्लाई किससे करोगे, सोर्स से। तो सोर्स से सिंक पे गया था, वापस से कहाँ पे आ गया, सोर्स पे आ गया। तो सोर्स ने क्या किया, दे दिया उसको हीट, हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कौन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, आगे वापस से बैक टू द सेम स्टेट, आगे हो गया साइकिल कंप्लीट, राइट। तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आउटपुट वर्क कैसे ले रहे हो। कार्नोट इंजन में आउटपुट वर्क 2 स्ट्रोक से मिलता है, कौन से 2 स्ट्रोक, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, और वर्क डन ऑन द गैस 2 स्ट्रोक में होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड। स्टर्लिंग इंजन में वर्क डन मतलब आउटपुट वर्क एक ही स्ट्रोक से मिलता है, ए टू बी, आइसोथर्मल एक्सपांशन, और वर्क डन ऑन द गैस एक ही स्ट्रोक में होता है, सी टू डी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। बाकी जो 2 स्ट्रोक्स है, दे आर जस्ट टू ब्रिंग द गैस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इज दिस क्लियर, पक्का पक्का 100%। तो तीनों साइकिल याद रहेंगे, तीनों में कितने कितने प्रोसेस थे, 4। जनरल हीट इंजन में आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। कार्नोट में आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक। यहाँ पे आइसोकोरिक नहीं है पहला,
पहला आइसोथर्मल है, फिर आइसोकोरिक है, फिर आइसोथर्मल है, फिर तो ये पहला प्रोसेस था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये फोर्थ था, राइट। इन केस ऑफ नॉर्मल हीट इंजन ए टू बी, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये फोर्थ, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर, पक्का। So that is the end of this chapter. We are done with this chapter.